श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar, Namaskar. Today we read chapter 31 of KishkindhaKandam, which has 51 verses. Concluding from the angry words of Sri Rama that he was wroth against Sri Sugriva, Lakshmana gets ready to kill the latter. Pacifying Lakshmana, Sri Rama, however, sends him to Sugriva with instructions to adopt a conciliatory attitude towards him. Reaching Kiskindha with a bow and arrow in hand and assuming an angry demeanour, Lakshmana asks Angada to announce his arrival to Sugriva. Even when apprised of Lakshmana's arrival by Angada, Sugriva, who was drunk with wine, is unable to follow Angada and comes to realize the gravity of the situation only on hearing the clamour of the alarmed monkeys and on being awakened to the reality by two of his foremost ministers and implored by them to pacify Lakshmana. आज हम किष्किंधा कांड के एकात्रिंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 51 श्लोक हैं। सुग्रीव व लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना, वानरों का भय तथा प्लक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना। सकामिनं दीनम् अदीन सत्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्ण कोपं नरेन्द्र सूनुः नरदेव पुत्रं रामानुजः पूर्वजम् इति उवाच। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त, दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बड़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। Prince Lakshmana, younger brother of Sri Rama, submitted as follows to his eldest brother Sri Rama, the son of a king who, though noble-minded, was being distressed, overcome as he was with grief and full of longing for his lost consort, his wrath having grown intense. न वानरः स्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यते कर्मफलानुषङ्गान् न मोक्ष्यते वानर राज्यलक्ष्मीं तथा हि न अतिक्रमते अस्य बुद्धिः। आर्य सुग्रीव वानर हैं, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बातों को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्य कर्म किया गया है, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुए हैं। अतः वह वानरों की राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालने के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। Since Sugriva, who is a monkey after all, would not stick to the conduct of the virtuous, who are constant in their friendship and love, nor does he recognize the relation of cause and effect between his virtuous action in the shape of cultivating friendship with you and solemnizing it in the presence of fire, and its reward in the shape of regaining his lost sovereignty and his wife. It is therefore clear that he is not going to enjoy long the fortune in the shape of the kingdom of the monkeys. Hence, his mind does not take rapid strides on the path of discharging one's obligations towards a friend. मतिक्षयात् ग्राम्य सुखेषु सक्तः तव प्रसादात् प्रतिकार बुद्धिः हतो अग्रजं पश्यतु वीरवालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोग में असक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई पर वीर वर वाली का दर्शन करे। ऐसा गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं कर देना चाहिए। He has got addicted to the vulgar pleasures due to loss of reason, and the inclination to repay one's debt springs up in one only as a result of your grace.
which has evidently not descended on him. Let him therefore see on his being killed his elder brother, the heroic Vali. Rulership should not be conferred on an individual who is so destitute of virtues as he is. न धारये कोपम् उदीर्न वेगं निहन्मि सुग्रीवम् असत्यम् अद्य हरिप्रवीरैः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुत्र्या विचयम् करोतु। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूं। अब वाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। I am unable to contain my wrath, whose vehemence has been intensified, and shall get rid of the faithless Sugriva this very day. Let the son of Vali, on being installed on the throne in place of Sugriva, conduct the search for Sita, the daughter of a ruler of men, along with the foremost heroes among the monkeys. तमात्त बाण असन उत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम् उवाच रामः परविरहन्ता स्ववीक्षितं सानुनयं च वाक्यम्। यूं कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप पड़ा हुआ था तथा वह क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनन्युक्त बात कही। To Lakshmana, who was rushing forward towards Kiskindha, bow in hand, nay, who had made known to Sri Rama his purpose of sallying forth to Kiskindha, and manifested wild anger as the precursor of fight, Sri Rama, the destroyer of hostile warriors, gave the following reply, which was well thought out and full of civility. नहि वै त्वद्विदो लोके पापम् एवं समाचरेत् कोपम् आर्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः। सुमित्रा नंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को संसार में ऐसा मित्र वध रूप निषद आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। Surely no one like you who knows what is right will ever knowingly perpetrate such a sin as indulging in the very thought of killing a friend. He who kills his anger through right judgment is a hero and the foremost of men. नेदमत्र त्वया ग्राह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण तां प्रीतिम् अनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम्। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति भी तुम्हारा प्रेम था, उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसे निभाओ। No such idea should be entertained on this occasion by you, O Lakshmana, a man of pious conduct as you are. Pursue the former love that existed between us and Sugriva, and recollect what happened in the past and also our friendship. सामोपहितया वाचा रुक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुम् अर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये। तुम्हें सांत्वना पूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया, फिर भी चुप क्यों बैठे हो। Avoiding harsh words, you ought to speak to Sugriva, who stands guilty of delay, in a conciliatory language, reminding him of the time that has already elapsed. यो अग्रजेन अनुशिष्टार्थो यथावत् पुरुषऋषभ प्रविवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरः। अपने बड़े भाई को इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधा पुरी में प्रवेश करने का विचार किया। Having been duly instructed as to what should be done, Lakshmana, the well-known hero, a veritable jewel among men and the slayer of hostile warriors,
boldly proceeded to enter the city of Kiskindha. ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः प्रीतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव की भवन की ओर चले। Thereupon the wise and pious-minded Lakshmana, who was intent on doing what is pleasing and what is conducive to the good of his eldest brother, and was feeling indignant, made for the palace of the monkey chief. शक्रबाणासन प्रख्यं धनुः कालान्तकोपमं प्रगृह्य गिरिशृंगाभं मंदरः सानुमानिव। उस समय वे इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंत के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ लेकर श्रृंगार सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। Bearing as he did his bow, shining brightly like the rainbow, the bow of Indra, nay, dreadful as the all-destroying time spirit and the god of death, the destroyer of the world, and resembling a mountain peak, he stood like the Mandara mountain. यथोक्तकारी वचनम् उत्तरं चैव चोत्तरं बृहस्पति समो बुद्ध्या मत्वा रामानुजः तदा। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सब को अच्छी तरह समझ बूझकर वहां से प्रस्थित हुए थे। Revolving in his mind what he had got to say to Sugriva, as well as the reply he expected from the latter, along with his own contemplated rejoinder, Lakshmana, younger brother of Sri Rama, who was wont to do as he was told by Sri Rama, who vied with sage Brahaspati, the preceptor of gods, in intelligence. कामक्रोध समुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना वृतः प्रभञ्जन इवा प्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्ततः। सीता की खोज विषय को जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, वह दोनों के कारण लक्ष्मण को की भी क्रोधग्री भड़क उठी थी। इस क्रोधग्री से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वैसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। सालतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन् बलात् पर्यस्यन् गिरिकूटानि द्रुमान् अन्यांश्च वेगितः। उनका वेग ऐसा बड़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते हुए पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। Nay, who was encompassed by the fire of wrath sprung from the longing in his brother's heart for getting a search for Sita initiated, and its frustration and displeasure with Sugriva, then rushed from that place like a tempest, uprooting with his might Sal, Palmera, and Ashwakama trees, as well as all the other trees, throwing down mountain peaks, full of impetuosity as he was. शिलाश्च शकलीकुर्वन् पद्भ्यां गज इवाशुगः दूरम् एकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशात् द्रुतम्। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डांगे भरते हुए वह कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। Nay, crushing the rocks under his feet like a swift-going elephant, he moved speedily, taking long strides due to exigency of the moment. ताम् अपश्यत् बलाकीर्णां हरिराज महापुरीं दुर्गाम् इक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किन्धां गिरिसंकटे। इक्ष्वाकुल के सींग लक्ष्मण ने निकट जाकर वानर राज सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर से सेना से व्याप्त होने के कारण वह पूरी दूसरों के लिए दुर्गम थी।
Lakshmana, a tiger among the Ikshvakus, beheld Kishkindha, the famous capital of the king of monkeys, situated in the midst of mountains and surrounded by an army of monkeys and therefore difficult to access. रोषात् प्रस्फुरमाणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः ददर्श वानरान् भीमान् किष्किन्धायां बहिश्चरान्। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष में फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुत तेरे भयंकर वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। Lakshmana, whose lips were trembling through anger, directed against Sugriva, saw fearful monkeys roaming outside in Kishkindha. तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषऋषभं शैलशृङ्गानि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृः कुञ्जरप्रख्या वानराः पर्वतान्तरे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुषा प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। Seeing the celebrated Lakshmana, a jewel among men, all the monkeys, who looked like elephants and behaved like men, snatched mountain peaks in hundreds as well and fully grown up trees in the midst of mountains. तान् गृहीतप्रहरणान् सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धो बहिन्दन इवानलः। उन सब को हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हैं। Lakshmana, for his part, got doubly enraged to see them all, weapons in hand, as a fire would flare up when fed with abundant firewood. तं ते भयपरीताङ्गा क्षुब्धं दृष्ट्वा प्लवङ्गमाः कालमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। Seeing him agitated like the all-devouring time spirit, the god of death, and the fire of universal destruction, the monkeys fled in their hundreds in all directions, their limbs overpowered through fear. ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुङ्गवाः क्रोधम् आगमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महलों में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। Duly entering the palace of Sugriva, the leaders of monkeys then appraised him of Lakshmana's arrival and wrath. तारया सहितः कामी शक्तः कपि वृषस्तदा न तेषां कपि सिंहानां सुश्राव वचनं तदा। उस समय काम के अधीन हुए वानर सुग्रीव भोग सक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातों को नहीं सुना। Sugriva, the foremost of monkeys, who was accompanied by Tara at that moment, and who was full of longing for women and deeply attached to the pleasures of the senses, did not instantly heed the words of those lions among monkeys. ततः सचिव संदिष्टा हरयो रोमहर्षणाः गिरिकुञ्जर मेघाभा नगरान् निर्ययुः तदा। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत हाथी और मेघ के समान विशाल काया वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे नगर से बाहर निकले। As commanded by the ministers, the monkeys who looked like mountains, elephants, and clouds in size, and made the hair of those who looked on them stand on end, thereupon issued out of the city at once. नक दंष्ट्रयुधाः सर्वे वीरा विकृतदर्शनाः सर्वे शार्दूल दंष्ट्राश्च सर्वे विवृतदर्शनाः। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे, वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थी और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सब का वहां स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। Having nails and sharp teeth for their weapons, they were all heroic and terrible to look at. The teeth of them all were like those of a tiger, and they could be clearly seen standing as they were in the open. दशनागबलाः केचित् केचित् दशगुणोत्तराः
केचित् नागसहस्रस्य बभूवुः तुल्यवर्चसः। इन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। Some of them possessed the strength of 10 elephants, others were 10 times stronger, while still others were equal in energy to 10,000 elephants. ततस्तैः कपिभिर्व्याप्तां द्रुमहस्तैः महाबलैः अपश्यत् लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम्। हाथ में वृक्ष लिए हुए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। Full of wrath, Lakshmana thereupon cast his eyes on the aforesaid Kishkindha, surrounded by those exceptionally mighty monkeys, standing trees in hand, which was difficult to access. ततस्ते हरयः सर्वे प्राकार परिकान्तरात् निष्क्रम्योतस्त्वास्तु तस्तुः आविष्कृतं तदा। तदंतर वे सभी महाबली वानरपुरी की 4 दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। Coming out of the fortification wall and crossing the limits of the moat surrounding it, all the aforesaid monkeys, for their part, who were exceptionally mighty, thereupon stood in the open on that occasion. सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्य अर्थमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगामसः। आत्मा संयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राजा के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। Considering the negligence on part of Sugriva as well as on the purpose of his eldest brother, Sri Rama, the valiant Lakshmana, even though self-possessed, fell a victim to anger once more. स दीर्घोष्ण महोश्वासः कोप संरक्तलोचनः बभूव नरशार्दूलः स धूम इव पावकः। वे अधिक गर्म और लंबी सांस खींचने लगे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। Having deep and burning sighs, his eyes blood red through anger, that tiger among men looked like fire enveloped in smoke. बाणशल्य स्फुरत् जिह्वः सायकासन भोगवान् स्वतेजो विषसंभूतः पंचास्य इव। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जीवा जान पड़ती थी। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वह सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विष से व्याप्त हो रहे थे। With the head of the arrow for its flickering tongues and the bow for its coils, and full of poison in the shape of his martial ardor, Lakshmana stood like a 5-headed serpent. तं दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्द्रमिव कोपितं समासाद्य अंगदः त्रासाद् विशद आगमत् परम्। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलयग्नि तथा क्रोध से भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टि गोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए और वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। Duly approaching Lakshmana, who shone like the blazing fire of universal destruction and resembled the infuriated king of serpents, Shesha, Prince Angada gave way to utter despondency through fear. सो अंगदं रोषताम्राक्षः संदिदेश महायशाः सुग्रीवः कथ्यतां वत्स माम् आगमनम् इत्युत। एष रामानुजः प्राप्तः त्वत्सकाश अरिन्दम भ्रातुर्व्यसन संतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः। तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर इत्युक्त्वा शीघ्रम् आगच्छ वत्स वाक्यम् अरिन्दम। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उसे कहना, शत्रु दमन वीर रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख में दुखी होकर आपके पास आए हैं।
और नगर द्वार पर खड़े हैं। वानर राज, यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रु दमन वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। His eyes bloodshot through anger, highly glorious Lakshmana commanded Angada as follows: Let Sugriva, my child, be appraised of my arrival as below. Arrived in your presence, O tamer of enemies, here awaits Lakshmana, Sri Rama's younger brother, at your door, tormented as he is by the said plight of his eldest brother, Sri Rama. His advice may be duly followed if it pleases you, O monkey chief. Delivering this message of mine, O tamer of foes, return soon, my child. लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टो अंगद अब्रवीत् पितुः समीपम् आगम्य सौमित्रर् यम् आगतः। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। Overcome with grief to hear the message of Lakshmana and seeking the presence of his uncle, Sugriva Angada submitted to him, Here is Lakshmana, son of Sumitra, who has come. अतांगदस्य सुतीव्रवाचा सम्भ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः निर्गत्य पूर्वं नृपतेः तरस्वी ततो रुमायाश्चरणौ ववन्दे। अब उसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। उन वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले वानर राज सुग्रीव के, फिर तारा तथा रुमा के चरणों में प्रणाम किया। Slipping away from the presence of Lakshmana, the swift-footed Angada, who was perplexed in mind at the highly pungent words of Lakshmana and wore a most wretched look on his countenance, bowed first at the feet of the king, his uncle Sugriva, and then at those of his aunt Ruma as well as of his mother Tara. संगृह्य पादौ पितुरुग्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों को स्पर्श किया, तदंतर रुमा के दोनों पैर दबाए, उसके बाद पूर्वक बात कही। Clasping tightly the feet of his uncle, Angada, who was endowed with terrific energy, caught hold once more of the feet of his mother, and pressing firmly the feet of Ruma, he then submitted to him the aforesaid matter. स निद्रा क्लांत संवीतो वानरो न विबुद्धवान् बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः। किंतु सुग्रीव मद एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वह जाग ना सके। The aforesaid monkey, however, who was heavy with sleep and overwhelmed with it, nay, who was drunk with wine and infatuated with love, did not wake up to the situation. ततः किल किलां चक्रुः लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः प्रसादयन्तः तं क्रुद्धं भयमोहितचेतसः। इतने में बाहर क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। Perceiving Lakshmana, enraged, the monkeys, whose mind was confused through fear, thereupon raised a hue and a cry, seeking to pacify him. ते महौघनिभं दृष्ट्वा वज्राश समस्वनं सिंहनादं समं चक्रुः लक्ष्मणस्य समीपतः। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। Descrying the presence of Lakshmana, they raised near about Sugriva a clamour resembling all at once the sound of a great onrush of water, or the peals of thunder, or the roar of a lion. तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः मद विह्वल ताम्राक्षो व्याकुलः श्रग्विभूषणः। वानरों की इस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे।
मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही। The monkey Sugriva woke up at that loud noise. With blood red eyes, he was beside himself through intoxication and felt troubled, garlands being his only ornaments. अथाङ्गद वचः श्रुत्वा तेनैव च समागतौ मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतो दारदर्शनौ फ्लक्षश्चैव प्रभावश्च मन्त्रिणा वर्तधर्मयोः वक्तुम् उच्चावचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ शंसततुः। अंगद की पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे, उन राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। Hearing the submission of Angada and gladdening Sugriva with words which expressed a definite opinion about the matter in hand, two famous counselors of Sugriva, the lord of monkeys, namely Plaksha and Prabhava, who gave sage counsel and had come with Prince Angada himself. प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थनिश्चितैः आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पथिम् सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मनुष्यभावं संप्राप्तौ राज्यार्हौ राज्यदायिनौ। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थ का वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार का, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे वास्तव में भगवान स्वरूप है। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है, वे दोनों समस्त लोकी के राज्य चलाने के योग्य हैं, वे ही आपके राज्यदाता हैं। Nay, who were highly esteemed by Sri Sugriva and were noble of appearance, and who stood respectfully by the side of Sugriva, sitting like Indra, the ruler of gods, announced to him the presence of Lakshmana, who had come to teach him various things about worldly fortune and righteousness. They said, having assumed for sport a human's resemblance, the two brothers, Sri Rama and Lakshmana, are true to their promise, highly blessed and deserving of sovereignty of all the three worlds, and have conferred rulership on you. तयोरेको धनुष्पाणिर्द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान् मुञ्चन्ति वानराः। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए वानर जोर जोर से चीख रहे हैं। One of them, Lakshmana, stands at your door, bow in hand, afraid of him, and violently shaking. The monkeys are raising shrill cries. स एष राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः व्यवसाय रतः प्राप्तः तस्य रामस्य शासनात्। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वह लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। Here stands the celebrated Lakshmana, younger brother of Sri Rama, the scion of the Raghuvamsha, arrived at the command of the same Sri Rama, with the latter's message as his charioteer and guide, and the determination to achieve his purpose for his chariot. अयं च तनयो राजन् ताराया दयितो अंगदः लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितः त्वरयानग। राजन, निष्पाप वानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। Nay, this blessed son of Tara, Angada, has been sent with expedition by Lakshmana to your presence, O sinless one. सो अयं रोष परिताक्षो द्वारी तिष्ठति वीर्यवान् वानरान् वानरपते चक्षुषा निर्दहन्निव। वानर पते पराक्रमी लक्ष्मण
क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित है और वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वह अपनी नेत्र अग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे. And consuming as it were the monkeys with his angry look, O Lord of monkeys, there stands at your door the powerful Lakshmana, his eyes suffused with anger. तस्य मूर्ध्ना प्रणामं त्वं सपुत्रः सह बान्धवः गच्छ शीघ्रं महाराज रोषोऽप्यद्योपशम्यताम्. महाराज आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें. Accompanied by your son and kinsfolk, make respectful obeisance to him with your head bent low. Depart quickly, O monarch, let his anger be appeased this very day. यथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः राजस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्य प्रतिश्रवः. राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसे कहते हैं, सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए. आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत प्रतिज्ञ बनिए. Devoutly act precisely as Sri Rama, whose mind is set on virtue, directs you to do, O king. Abide by your understanding with him and remain true to your promise. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 31 सर्गः. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ. Thus ends Canto 31 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमम्यहम्. धन्यवाद. धन्यवाद.